మాధవి ముచ్చట్ల ఛానల్ కు స్వాగతం. యాలకులు, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, వెనిల్లా, అంజీర్, డ్రై ఫ్రూట్, కాఫీ గింజలు ఇలా చాలా రకాలను చూడాలని స్పైసెస్ గార్డెన్ లోకి వచ్చామండి. ఇది కర్ణాటకలోని కూర్గ్ లో ఉంది. ఇక్కడ చూసారా, ప్లాంటేషన్ టూర్ కి వెళ్ళాలంటే 200 పర్ హెడ్. ఓ అరగంట పాటు ఇక్కడ తోటలోని కాఫీ మొక్కలు, స్పైసెస్ చెట్లను ఎలా పెంచుతారో చూపిస్తారట. ఇప్పుడు వాటిని చూడటానికని మనం వెళ్దాం. ఇక్కడ దారంతా అనీవెన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనిషికి ఒక కర్రని ఇచ్చారు. ట్రెక్కింగ్ ఫీల్ కూడా వస్తుందట. ఈ స్పైసెస్ గార్డెన్ లోని వర్కర్స్ మనకి వచ్చి చూపిస్తారు ఏ మొక్కలు ఎక్కడుంటాయి అనేది అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సిల్వర్ ఓక్, రోజ్ వుడ్, వైల్డ్ మ్యాంగో ట్రీస్, పోక చెట్లు వాటన్నిటిని కూడా చూపించారు. రంగు నీళ్లను ఇలా బాటిల్స్ లో వేసి హ్యాంగ్ చేస్తే మంకీస్ రాకుండా ఉంటాయని వాటిని ఇలా పెడతారట. ఇక్కడ ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న ఈ కాయలు ప్యాషన్ ఫ్రూట్స్. ఇవి పసుపు రంగులోకి మారిన తర్వాత తినడానికి చాలా బాగుంటాయి. ఇదిగోండి, ఇక్కడ కనిపిస్తున్న కాఫీ ఫ్యాక్టరీని కూడా చూసాము. ఆ వీడియోని కూడా అప్లోడ్ చేశాను. లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో పెడతాను, తప్పకుండా ఆ వీడియో కూడా చూడండి. కాఫీ గింజలు ఎలా పండిస్తారు ఏంటనే వీడియో కూడా చూడండి. ఈయన ఇప్పుడు చూపిస్తున్నది ప్యాషన్ ఫ్రూట్. ఇది ఇంకా పచ్చిగానే ఉంది, పసుపుగా మారిన తర్వాత చాలా బాగుంటుందట. ఇక్కడేమో ఈ పువ్వులను చూసారా, చాలా కొత్తగా భలే అందంగా ఉన్నాయి కదా. చిలక ముక్కుల్లా ఎంత అందంగా ఉన్నాయో, మంచి రంగుతో. కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది కదా. పచ్చటి ఆకుల మధ్య ఎరుపు పసుపు రంగుతో ఎంత అందంగా ఉన్నాయో. అలాగే ఈ ఇల్లు చూడండి, కాఫీ ఫ్యాక్టరీలోని ఒక ఇల్లు ఇది. ఇక్కడే కాఫీని తయారు చేసి ప్లాంటేషన్ టూర్కి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ చిన్న చిన్నగా ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తున్నవి సింగపూర్ చెర్రీస్. ఎర్రగా ఉండే ఈ పళ్ళు మన వైపు కూడా ఉంటాయి కదండి, సింగపూర్ చెర్రీస్. ఇప్పుడు ఇక తోటలో చెట్ల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ స్టాఫ్ చూడండి. సో वेनिला आपको जो ना आइसक्रीम देखने मिलता है, वेनिला फ्लेवर्ड का आपको आइसक्रीम ज्यादा मिलता है. एक्चुअली आपको आइसक्रीम होता है ना बहुत सस्ता मिलता है, यानी कि 10 रुपीज 20 रुपीज में मिल जाता है. ఒరిజినల్ వెనిలా का जो చెట్లపై పాకుతున్న వెనిలా దగ్గర నుండి చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఈ చెట్టుకి లైట్ కలర్ లోను, అలాగే దూరంగా ఇంకో చెట్టుకి ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్నాయి చూడండి వెనిలా తీగలు. కాయలు ముందు ఇలా ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండి తర్వాత నలుపు రంగులోకి మారుతాయి. వాటిని అమ్ముతారు. చాలా ఖరీదైనవి వెనిల్లా పాట్స్. ఇప్పుడేమో బాగా కారంగా ఉండే పచ్చిమిర్చిని చూపిస్తున్నారు. नहीं होते हैं, ये ग्रीन ही जब पक जाता है तो रेडिश कलर का होता है. साइज में उतना ही छोटा ही रहता है, बड़ा नहीं होता है वो चिल्ली. बी के घर पर ग्रो होता है, इसीलिए हम लोग उससे लेकर के यूज करना पड़ता है. ओके, हर समय ये पूरा कॉफी का ही प्लांट है, देख सकते हैं. कॉफी है, कॉफी फ्रूट. ओके, कॉफी में मार्च ट्रेड में फ्लावरिंग सीजन है. अभी देखिए फ्लावर पूरा सूखकर खराब हो गया है. सूखने के बाद उसमें से कॉफी फ्रूट ग्रो होता है. ये कॉफी फ्रूट देख रहे हैं ना, पूरा कॉफी फ्रूट ही है. अभी ये रेड हुआ है, अभी ये ग्रीन है, यानी कि अभी ये ना इस साल के लिए नहीं है, नेक्स्ट इस ये ईयर के दिसंबर या जनवरी मंथ में हम. ఇప్పుడు ఇలాచి యాలకులు మొక్క ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అసలు ఇలాచి మొక్కలో ఏ భాగంలో కాస్తుందో తెలిస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. చూడండి, इलायची का प्लांट है. వేరులాగా కిందన తెల్లగా కనిపిస్తున్నాయి కదండి, కణుపుల్లాగా ఉన్నాయి. అక్కడ ఇలాచి కాస్తుందట. इधर है सर, आइए. గ్రీన్ కలర్ वाला है. ओके, रूट्स में ग्रो होता है. जिंजर, टर्मरिक एंड इलायची तीनों का प्लांट का लीफ आपको देखने के लिए सेम ही रहता है. जिंजर, टर्मरिक. सो ये ग्रीनिश इलायची का प्लांट है. सो आपको ईयरली ये ग्रीनिश इलायची का प्लांट है. दूसरा होता है व्हाइटिश इलायची. प्लांट तीनों का सेम ही रहता है, व्हाइट वाला इलायची को. वो आपको ईयरली 2 टाइम्स ग्रो. భలే ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదండి. యాలకులు అనేవి చూసారా కిందన కాస్తాయట. పసుపు అల్లం లాగే యాలకుల మొక్క కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడేమో లవంగాల మొక్కను చూపించబోతున్నారు. हम लोग छोड़ते हैं ना ईयरली, सो सूखकर खराब होने के चांसेस है, फिर हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसे नहीं रहते हैं. बड़ा प्लांट्स भी है, ఇప్పుడేమో దాల్చిన చెక్క చెట్టును చూద్దాం. బిర్యానీ ఆకులను దాల్చిన చెక్క ఆకులతో కలిపి కల్తీ చేసి అమ్ముతారట. पत्ता बेलीफ की तरह ही दिखता है, ये बेलीफ नहीं है वो. ओके, मार्केट में ऐसे क्यों बोलते तो आपको दालचीनी का पेड़ का पत्ता देखने के लिए तेज पत्ता की तरह ही दिखता है, वो तेज पत्ता नहीं होता, क्योंकि तेज पत्ता उसके अलग ही पेड़ पर ग्रो. नीचे से कट करेंगे ना तो इसी पेड़ से हमें 2 क्वालिटी मिलेंगे. एक होता है आउटसाइड लेयर, वो पेड़ का बाहर को होता है. सो सेकंड क्वालिटी है जो इनसाइड जो आपको लेयर मिलता है ना आपको शॉप्स में, पूरा रोल जैसे एक पानी ताड़ी या नीरा बोलते हैं उसे. आपको तेलुगु में सारा ही मालूम है, एक पेड़ से एक पानी निकालते हैं, सुना है सारा ताड़ी जाने के बाद उसके बाद पूरा ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है. चढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो फ्रूट से कुछ यूज नहीं होता है, बंच लटकता है ना, उधर ही कट कर उधर ही उसका मटका बांध देते हैं. एक दिन मटका वही बांधना पड़ता है क्योंकि उसका इनसाइड वाला पानी एक एक ड्रॉप ही मटके में गिरता है, इसीलिए
उसी पानी को नेक्स्ट डे आपको अर्ली मॉर्निंग पीते हैं ना, उसे आपको वेट लॉस, फैट बर्न, किडनी के लिए मेडिसिन की तरह वो पानी को यूज किया जाता है। टेस्ट के लिए तेज पत्ते का पेड़ देख रहे हैं ना, ऊपर ये बे लीव्स, आपको ये एंड वो दालचीनी का जो पत्ता होता है ना, देखने के लिए सेम ही रहता है, इसलिए मार्केट में ना उसे ही ओरिजिनल बे लीफ के साथ मिक्स करके सेल किया जाता है। सो एक पेड़ में आपको एक साल में 3 kg लीफ मिलता है। 3 kg क्यों बोलते हैं? ये लीफ रहता है, वेटलेस होता है, इसलिए इसके साथ वो 7 kg वो नॉर्मल लीफ को मिक्स करके हो गया ना 10 kg, कितना प्रॉफिट बन जाता है, उसे आपको मिक्स करके सेल होता है। बे लीफ को मैक्सिमम कुकिंग के लिए 2 ही पीस यूज करते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, ये आपको ग्रीन डालता है। सो आपको मार्केट में ग्रीन भी मिलता है, ब्राउनिश भी मिलता है, क्योंकि ग्रीन में ज्यादा हम लोग सनरेड होता है, ज्यादा होता है तो रोस्ट होते हैं, वो ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी आपको मिल जाता है। आपको ओरिजिनल फ्लेवर्ड होता है ना, वो ग्रीन में आपको देखने मिलता है। ग्रीन होता है आपको मैक्सिमम कुकिंग के लिए 2 ही पीस यूज करते हैं। आपको वो उसका लीफ होता है, आपको 5 to 6 पीस यूज करने के बाद में इसमें फ्लेवर्ड नहीं होता है, ओके? तब सोच लीजिएगा उस काम कर रहा है वो, उसमें मिक्स करके आपको सेल कर रहे हैं, ओके? सो आपको क्या होता है, और आपको इसे जब बाइक करना चाहते हैं इसका कौन सा भी टेस्ट, फ्रेगनेंस कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि ये लीफ होता है। जब आप लोग इसे कुकिंग में यूज करेंगे ना, तभी इसका फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस बाहर आ जाता है, ओके? क्लियर है? इसे आपको देख रहे हैं ना, वो टर्माइट खाकर खराब कर रहे हैं। हम लोग कुर्ग में, पहले बता रहा हूँ, कुर्ग में हम लोग पेड़ में, प्लांट्स में कुछ भी स्प्रे नहीं करते, यानी कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी स्प्रे नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली यूज नहीं होता है। ये ग्रीन को ही निकाल कर आपको 70% सनरेड होता है, उसके बाद उसे 8 पैकेजिंग करके सेल होता है। अभी ये जो पीछे जो पेड़ देख रहे हैं ना, 200 साल पुराना, ये आम का पेड़ है, वाइल्ड मैंगो या फॉरेस्ट मैंगो ट्री बोलते हैं। ये पेड़ एक्सपायरी होने के बाद और भी 5 साल हो गए, क्योंकि इसमें 5 साल में ना एक भी फ्रूट नहीं ग्रो हो रहा है। सो उसे अंदर से ना वो टर्माइट यानी कि वो दीमक खाकर पूरा खराब कर रहे हैं। सो ये जो मैंगो होता है ना, उसमें हम लोग वाइल्ड मैंगो या फॉरेस्ट मैंगो बोलते हैं। आपको यस, मैंगो वाइल्ड मैंगो बोलते हैं सर इसको। आपको बाकी के मैंगो की तरह नहीं होता है। आपको बाकी के जो मैंगो मिलते हैं ना, वो पहले उसका स्किन ग्रीन रहता है, पक जाने के बाद येलो कलर में कन्वर्ट होता है। ये मैंगो ऐसे नहीं है, पक जाने के बाद भी उसका स्किन ग्रीन ही रहता है। आपको बाकी तरह का मैंगो को क्या करते हैं, उसे खाने के लिए आपको उसे तोड़कर खाना पड़ता है। ये मैंगो को कोई भी पेड़ के ऊपर चढ़कर तोड़ता नहीं है, वो नेचुरली नीचे गिर जाते हैं, उसे हम लोग यूज करते हैं। एक पेड़ में एक साल से अराउंड 30,000 मैंगोस मिल जाते हैं। जून जुलाई इसका सीजन रहता है। साइज में बहुत छोटा रहता है। कुर्ग में मेनली ट्रेडिशनल करी बनाने के लिए ज्यादा यूज होता है। कुर्ग में ना आपको 2 टाइप ऑफ ट्रेडिशनल करी बनता है। एक होता है पोर्क करी, यानी कि पिग यूज कर करी बनाते हैं। दूसरा होता है मैंगो करी। यही मैंगो का ना हम लोग जैगरी यूज करके फिर उसका स्वीट करी बनाते हैं। मैंगो आपको डायरेक्ट भी खा सकते हैं, उसका स्किन भी बहुत स्वीट होता है। और एक और क्या करता है, मैंने आपको उधर जो चिल्ली दिखाया था ना, वर्ल्ड का 2nd मोस्ट स्पाइसी चिल्ली, बर्ड साइज चिल्ली, वो ग्रीन को हम लोग चटनी टाइप कन्वर्ट करके एक सॉल्ट वाटर में वो चटनी को डालकर ऐसे रखते हैं 1 दिन। उसके बाद नेक्स्ट डे इसी मैंगो को हम लोग क्या करते हैं, वॉश करके वो पानी के अंदर डालने के बाद 1 ईयर 2 ईयर्स के बाद वो मैंगो को हम लोग अचार टाइप यूज किया जाता है। वो आपको मैंगो अभी मार्केट में मिलता है 10 रुपीज का पर पीस के हिसाब से वो सेल होता है, ओके? इसी में सो ये पेड़ होता है ना अंजीर, यानी कि फिग बोलते हैं इंग्लिश में। सो आपको फिग ड्राई फ्रूट फॉर्म में ज्यादा आपको देखने मिलता है। इंडिया में ना 3 टाइप ऑफ अंजीर देखने को मिलता है। एक होता है अंजीर आपको नॉर्थ प्लेस पर देखने को मिलता है, वो अंजीर का प्लांट होता है, प्लांट में ग्रो होता है, उसके आपको पत्ते के आसपास उसमें फ्रूट देखने को मिलता है, वो फर्स्ट वाला वेरायटी है। दूसरा जो वेरायटी होता है ना, वो आपको तमिलनाडु प्लेस पर मिलता है। उधर ये अंजीर का पेड़ होता है, पेड़ के आपको पत्ते के आसपास इसमें फ्रूट ग्रो होता है। ये तीसरा वाला वेरायटी है। इसमें क्या होता है, फ्रूट जो होता है ना नीचे ग्रो होता है। आइए देख सकते हैं, फ्रूट भी ग्रो हुआ है, इधर आइए देख सकते हैं, फ्रूट भी है लगा हुआ है। ఓ నీచే అంజీర్ పండు కిందన కాసింది చూసారా, ఇలాగే చెట్టుకి అక్కడక్కడ కాస్తుంటాయట। आप लोग अभी ऐसा पॉइंट देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पर अंजीर ग्रो होने लगता है। तो पेड़ में मैक्सिमम में फ्रूट इतने तक ये फ्रूट ग्रो होता है, उससे ऊपर ग्रो नहीं होता है। सो मेनली इसे ड्राई फ्रूट बनाने के लिए यूज होता है। सो आपको एक पेड़ में 20 kg अंजीर मिल जाते हैं 1 साल में। इससे हम लोग कैसे, आपको साइज में फ्रूट बड़ा रहता है, पहले ग्रीन रहता है, कच्चा पक जाए तो उसका स्किन रेडिश कलर में कन्वर्ट होता है। फिर हम लोग उसे निकालकर उसका स्किन रिमूव किया जाता है, बाद में उसके सेंटर से हम लोग होल कर देते हैं। आपको अंजीर का जो ड्राई फ्रूट सेंटर में जो होल देखने मिलता है ना, उसे रस्सी डालने के लिए होल करना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट उसमें गिरना नहीं चाहिए, इसलिए एक नेट डालकर 14 डेज उसे सनरेड किया जाता है। सनरेड करने के बाद उसे एक मशीन डालकर उसे प्रेस किया जाता है, तो बड़ा वाला फ्रूट प्रेस होकर छोड़ जाते हैं। उसका पानी भी पीते हैं। ऐसा क्या तो ब्लड के लिए और ये बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा ये फ्रूट होता है। इसका ड्राई फ्रूट एंड रॉ फ्रूट दिया तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा हो रहता है हेल्थ के लिए, ओके? रेड सैंडल को मेनली यूज होता है आपको फेस का पिंपल्स के लिए भी यूज होता है। फेस का पिंपल्स के लिए रेड सैंडल, एंड उसे फर्नीचर बनाने के लिए भी मेनली यूज होता है। रोजवुड सिर्फ फर्नीचर में भी यूज होता है। आपको ये रेड सैंडल का भी एक्सपायरी होता है, मैक्सिमम 100 ईयर या 200 ईयर टिक पाता है।
ये नॉन एक्सपायरी है, 1000 ईयर्स भी ऐसे रखते ना तो इसमें आपको कितना अच्छा रहता है, ऐसा कुछ भी यूज नहीं होता है। आपको बाकी का जो नॉर्मल जो आपको घर में जो यूज होता है ना वो वुड, उसका आपको पॉलिशिंग करने के बाद ही उसे यूज किया जाता है, पॉलिश करने के बाद ही उसे आपको दिया जाता है। ये वुड का आपको बनाने के बाद उसे पॉलिश नहीं करते, डायरेक्टली ऐसे यूज किया जाता है। सो ये वुड का आपको नो एक्सपायरी, कितने साल भी आप लोग आराम से रख सकते हैं, क्योंकि इसमें टर्माइट बेड का खाता नहीं है। मेनली उसे वुड का मेनली स्पेशलिटी है। और आपको गिटार में जो वुड देखने मिलता है ना, मेनली उसे रोज वुड का ही बनाते हैं ज्यादातर। ओके, नो एक्सपायरी है। फर्नीचर, शेल्फ, वॉल के डिजाइन, कैरम बोर्ड सब बनाने के लिए भी वो वुड को यूज किया जाता है। वुड में से महंगा वाला वुड बिकता है वो वाला। ओके, नॉर्थ में उतना इसका स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में उतना ग्रो नहीं होता है, क्योंकि उधर कोल्ड में क्लाइमेट हॉट है। कूर्ग में आपको कुछ भी डालते नहीं, इधर ग्रो होता है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है और सॉइल भी ऑर्गेनिक सॉइल होता है। इसीलिए इधर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। आपके पास कितना बड़ा है प्रॉपर्टी हो, एक ही रोजवुड लगा सकते हैं, एक ही रोजवुड। इसलिए हम लोग एक ही लगाते हैं इधर, एक ही रोजवुड। और हम लोग सैंडल, रेड सैंडल भी इधर आपको अराउंड 30 किलोमीटर के बाद सैंडल कार्ड एस्टेट बोलकर एक एस्टेट भी है, वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, उधर आपको देखने मिलते हैं। विजिटिंग के लिए अलाउड नहीं होता है। फ्रूट, स्टार फ्रूट बोलते हैं ना, ये कॉफी में యాలకులు, రోజ్వుడ్, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, కాఫీ ముక్కలతో పాటును వీటిని కూడాను పెంచుతున్నారు. తర్వాత వాటిని ఇలాగా స్టోర్లో అమ్ముతున్నారు. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మాధవి ముచ్చట్లు ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నేను ఏ కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అలాగే వీడియోస్ను లైక్ చేసి మీ వాళ్లకు షేర్ చేయండి. येलोइश कलर में होता మీ है। అమూల్యమైన सबको సపోర్ట్కు directly क्या तो థ్యాంక్ యూ पट्टा సో रहता है, हम మచ్. लोग और क्या करते हैं